बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 4 देखेंगे। हमारा लेसन नंबर 4 है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। हमने अपने पिछले लेसन में फॉरेस्ट की टर्म को डिटेल स्टडी किया कि फ़ॉरेस्ट से क्या मुराद है और हमें उसके क्या फ़वाइद हैं जंगलात के, और पाकिस्तान में जंगलात किस तादाद से पाए जाते हैं और किन किन सूबों में जंगलात बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट एसएलओ देखेंगे, रिकॉग्नाइज द टर्म डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आज हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की टर्म से क्या मुराद है और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। लेकिन उसके बीच में हम लोग उसके कॉजेज़ भी देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, देन वी विल स्टडी इट्स इफ़ेक्ट्स। इस एसएलओ को हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू अचीव करेंगे। इस मकसद के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसको आपने गौर से सुनना है। उसमें आपने डिफॉरेस्टेशन की टर्म को समझना है और उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स को भी नोट डाउन करना है। आपने अपनी इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि इसके बाद जो हम आपको होमवर्क में एक्टिविटी दें वो आप उसको क्लियरली परफॉर्म कर सकें और साथ साथ समझ सकें कि डिफॉरेस्टेशन एज इट सेल्फ क्या चीज़ है। Have you heard your grandparents being nostalgic about the past? They say things like, earlier there used to be trees here, or we would wake up to the sound of birds. Now, can you tell me why this isn't a reality anymore? For starters, we could blame ourselves for wanting huge buildings and wide roads. Where has the natural cover of forests disappeared? In truth, we have cut down all those trees in the name of development. Can you tell me what this process is called where many trees and plants are cut out? Yes, we call it deforestation. Clearing up forests for human benefit is called deforestation. Can you name a few reasons why man clears up forest lands? Agriculture, that's right. We clear land to bring more land under cultivation. What other reasons can you think of? Yes, for building factories, houses and roads. And what about cutting trees for wood and fuel? Isn't that another reason? Of course it is. Man has cut trees over the years, and do you know this very action has caused some serious reaction? Yes, we call them consequences. We cannot get away by reducing the green cover on our planet. Trees and plants are a part of an ecological chain, and they maintain a specific balance. Let us see how many deforestation consequences you are able to identify from the following pictures. You can now imagine the extent of consequences deforestation has, can't you? Let us look at each of these in a little more detail. Trees and plants give out oxygen and use carbon dioxide during photosynthesis. With reduced plants and trees, the level of carbon dioxide on the earth is increasing. Carbon dioxide cannot escape into space, and like many other harmful gases, it is creating a blanket of heat around the earth. This increasing heat has led to a famous phenomenon known as global warming. This is the cause of the increase in the temperature of the earth. Do you know that according to studies, the last few decades of the 20th century have been hottest in the last 400 years? This can create a chain of events. High temperatures affect the water cycle. Glaciers melt at an alarming pace. Soil cannot hold excess water during rainfall or even rise in sea level. Both these events can cause floods. On the other hand, any change in the water cycle can also lead to droughts. Haven't you noticed the erratic climate changes in your area? These are all results of deforestation. Let us see how the water table is affected due to deforestation.
Trees and plants have roots which hold the soil and allow water to percolate into the soil. With trees around, water does not run off, carrying away with it the topsoil. This means that absence of trees would cause increased soil erosion, removal of topsoil layer, and reduced underground water levels. Soil that is devoid of its top layer is infertile, and gradually open lands become deserts. This process is called desertification. Land that had once harbored rich trees and wildlife now remains a desert devoid of all life. What about pollution? As already stated, increased release of harmful gases has caused global warming. This pollutes the air around us. It is therefore evident that all consequences are interrelated. Rampant cutting down of trees will only add to more problems around us. What can we do to prevent this? Can we repair the damage done? To know more, watch our next video. तो आपने अपनी इस वीडियो में सुना डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। इंसान जब अपने फ़ायदों के लिए दरख्तों को एक बड़ी तादाद में काटते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ्यूल, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करने के लिए आपको ईंधन के तौर पर भी लकड़ी चाहिए होती है, या आप लकड़ी को मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हाउसेस, प्लाजाज एट्सेट्रा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के हमारे प्लैनेट पर या हमारी अर्थ पर या हमारे सराउंडिंग्स पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं? राइज इन टेम्परेचर, यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, और यू कैन से ड्राई लैंड। तो ये आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो आपने देखे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। आपने सुना कि डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, फिर उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन की और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर परफॉर्म करनी है। ये होमवर्क की एक्टिविटी हमने ख़ुद आपके लिए डिज़ाइन की है, इसको साथ अपने नोट डाउन भी कर लें। आस्क योर पेरेंट्स हाउ वॉज द टेम्परेचर कंडीशन इन समर व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अपने पेरेंट्स से पूछें जब वो आपकी उम्र के थे तो उस टाइम उनके ज़माने में या उनके टाइम पर समर कंडीशन, समर में वेदर किस तरह का था, गर्मी ज़्यादा हुआ करती थी या कम थी। देन आस्क डज एनी चेंज अकर इन फ्यू ईयर्स, क्या कुछ सालों में उनके मुताबिक गर्मियों में या मौसम में कोई तब्दीली आई है। इफ़ येस देन व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंज। अगर ऐसी कोई तब्दीली आई है, अगर उनको लगता है कि जब उनके टाइम में समर्स थे तब गर्मी कम थी और अब के समर्स में गर्मी ज़्यादा है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं जिनके बायस क्लाइमेट में इतना बड़ा चेंज आया है। अपने पेरेंट्स को गौर से सुनें और जो आपको उनका जवाब मिलता है उसको कंक्लूड करें और अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करें और अपनी स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। थैंक यू सो मच।